Good evening, everybody, and welcome to this lovely evening once again. Hope you are getting my voice well. I think so. It's a bit blur picture is there because of maybe a net access. Okay. Okay. During the lecture, I think so it will get clear. Just wait, adjust for 5 to 6 minutes. In between, it will get clear, and we'll be having a clear picture of the things. Okay. So let's again to continue with the chapter topic what we are discussing, and we were discussing. We have started with the chapter periodic table. But in order to get periodic table well, we need to have the understanding of electronic configuration. And what is electronic configuration? Already I stated. It is a distribution of electrons in shell, subshells, and orbital is called as an electronic configuration. So distribution of electrons in shells, subshells, and orbital is called as an electronic configuration. So yesterday we have seen that every atom has the shells. So here you can say every atom has the shells, and shells are denoted as n, and these are numbered as 1, 2, 3, 4, 5. Then every atom has subshells, and these subshells are denoted by L, and that is nothing but S, P, D, and F. They are denoted by this, and then are orbitals. So orbitals are शेल्स के अंदर सबसेल्स होते हैं और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसी का डायग्राम देखा हमने कल जो हमने डायग्राम देखा था, दैट इज यू कैन से सपोज n is equal to 1, then n is equal to 2, then n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6, and n is equal to 7. So these are the cells. और इनके सबसेल्स क्या होते हैं हमने देखा, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं. पहले के अंदर क्या होता है, यू कैन से हियर इज 1s. दूसरे के अंदर क्या होता है 2s एंड 2p. तीसरे के अंदर होता है 3s, 3p एंड 3d. ओके. 4s, 4 के अंदर 4 होते हैं, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है. 5 के अंदर 5 होते हैं, दैट इज 5s, 5p, 5d, 5f, 5g लाइक दैट. बट हमें जरूरत नहीं, हमारी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन 5 तक खत्म हो जाता है, तो जरूरी नहीं है. 6 के अंदर वापस होता है 6s, 6p, 6d एंड 6f, और यहाँ पे 7 में होता है 7s, 7p, 7d एंड 7f. दिस व्हाट वी कैन से. तो अब देखिए इसके अंदर हम देखते हैं. सो दिस इज, so all this is nothing but the S series. This is nothing but the P subcell. This is nothing but the D subcell, and this is nothing but the F subcell. So cells are here. ये cells है, और subcells are here. So देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में subcells are here, S, P, D, F, and cells are here. मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 like this. ये तो इससे ये डायग्राम बनता है इस तरीके से, और ये सीक्वेंस होता है. अभी हाँ, एवरी एटम के अंदर शेल्स है, शेल्स के अंदर सबशेल्स है, और सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और एनी ऑर्बिटल कैन ऑक्युपेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. हम जब सबशेल की बात करते हैं, एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये याद रखिएगा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. दैट इज एवरी एस सबसेल, किसी का भी एस सबसेल 1s मतलब फर्स्ट सेल
उसका s सबसेल 1s, 2s सेकंड सेल s नाम का सबसेल, 3s थर्ड सेल s नाम का सबसेल, लाइक दिस। तो ये सारे s सबसेल है, फर्स्ट सेल के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, सबके अंदर s प्रेजेंट होता है। एंड किसी भी s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज द p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और किसी भी f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0 to 14। This is what, how can we say, this is the maximum capacity of that particular subcell, which we can write over here. Okay, now this electron configuration can be written as nl raised to x, like this, nl raised to x। अभी इसके अंदर देखिए n क्या बताता है, हमेशा n बताता है शेल, l क्या बताता है सब सेल, एंड x क्या बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So this is the way how we write the electronic configuration. This is the way how we write the electronic configuration. NLS, N represent the shell present in an atom, L represent the subcell, that is also called as azimuthal quantum number, N is called as principal quantum number। तो principal quantum number को ही shell कहते हैं और azimuthal quantum number को subshell कहते हैं, and X is the number of electrons present in that। तो NLX इस तरीके से electronic configuration हमेशा represent किया जाता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एनर्जी सीक्वेंस होता है इस तरीके से होता है, क्योंकि कल हमने देखा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर filled according to their increasing energy level। So the orbital having lower energy is filled first, followed by orbital having higher energy, so that goes on। So इसलिए कल मैंने डायग्राम दिया था कि ये अगर हम सीक्वेंस देखते हैं तो एक डायग्राम होता है, स्कीमेटिक डायग्राम, जो हम लोग याद रख सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरीके से बने जाते हैं। दिस इज द क्रॉस एरो आई कैन ड्रॉ लाइक हियर। So this is the cross arrow, so we can have this is the cross arrow। अभी देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको करना क्या है, जस्ट क्लाइंब द एरो के ऊपर क्लाइंब कीजिए, वापस बॉटम में आके वापस क्लाइंब कीजिए, दैट इज द एनर्जी सीक्वेंस। क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट हम अच्छी तरह जानते हैं कि फर्स्ट सेल हैज द लोएस्ट एनर्जी, सेकंड सेल हैज हायर देन दैट, सो इट इंक्रीजेस अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ता जाता है, बट ये शेल्स के बारे में ट्रू है। एवरी शेल हैज द हाईएस्ट एनर्जी, फर्स्ट सेकंड हैज ग्रेटर देन फर्स्ट, थर्ड हैज ग्रेटर देन सेकंड, फोर्थ हैज ग्रेटर देन 3। सो energy increases here in case of shells, but when we talk about the subshells and orbitals, there are many subshells are there who are having lower or high energy that may belongs to any of the cells। So for that, this is difficult to remember the energy sequence, and that's why this diagram, schematic diagram, is much important in order to recall or remember this sequence। So this arrow, this schematic diagram, gives the sequence of energy of subshells and all। So अभी एरो क्लाइंब करके देखते हैं कि एनर्जी का सीक्वेंस क्या आ रहा है। अब देखिएगा, सो हियर यू कैन से एनर्जी सीक्वेंस देखिएगा। सबसे पहला ऑर्बिटल क्या है आपका 1s, सो पहला मिलता है हम लोगों को 1s नाम का ऑर्बिटल, कॉमा, उसके बाद बॉटम आके वापस क्लाइंब कर रहा है 2s, सो दिस इज 2s। उसके बाद वापस बॉटम में आता है, दैट इज यू कैन से 2p के बाद आता है 3s, कॉमा, 3s के बाद यहाँ पे आता है 3p के बाद आता है 4s, ओके, 4s के बाद यहाँ पे आ गया 3d के बाद आता है 4p। अब यहाँ पे देखिए 3d और 4p को बात कीजिए। हम शेल्स की अगर बात करते हैं, तो थर्ड सेल और फोर्थ सेल को कंपेयर करते हैं, तो एब्सोल्युटली थर्ड सेल हैज द लोएस्ट एनर्जी एंड फोर्थ सेल हैज द हाईएस्ट एनर्जी। 100% इसका ज्यादा है और थर्ड का कम है। लेकिन हम सबसेल्स की बात करते हैं, थर्ड सेल का डी सबसेल और फोर्थ सेल का पी सबसेल, इनमें अगर देखते हैं हम लोग, या फिर फोर्थ का एस सबसेल और 3 का डी सबसेल, देखिए 4 के एस सबसेल का एनर्जी कम है देन द डी सबसेल ऑफ थर्ड सेल। सो इसका मतलब देखिए 4s का एनर्जी कम है, 3d का एनर्जी ज्यादा है, लेकिन 4p का एनर्जी ज्यादा है 3d से। सो दैट्स व्हाट वी कैन से। तो इन केस ऑफ सबसेल्स एनर्जी इज बिट कंफ्यूजिंग, मतलब we can't predict theoretically which is having lower energy, which is high energy, and that's why we have the n+l rule, we have the above principle rule, जहाँ पे हमने काफी सारे रूल देखे कि n+ रूल के हिसाब से, वो अभी यहाँ का पार्ट नहीं है, बट वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉर्निंग में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जिनको डिफिकल्ट है वो मॉर्निंग में एटॉमिक स्ट्रक्चर अटेंड करें, उनको वहाँ पे समझ में आएगा। नाउ this is the energy sequence, और इस एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी सीक्वेंस में भरे जाते हैं।
4p के बाद देखिए, 4p के बाद क्या आता है 5s, तो ये आगे आगे कंटिन्यू करना है, दैट इज 5s। 5s के बाद आता है वापस 4d, 4d के बाद आता है 5p, 5p के बाद आता है 6s, 6s के बाद क्या आता है 4f, so on, ऐसे एरो करके आप निकालो 5f तक निकालो। So this is the energy sequence. This diagram has to be remembered or recalled well. So I will suggest each and everyone take a proper screenshot of this diagram, or you can write this diagram well. So please have a screenshot, please. Yes, everyone taken it. So I expect करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट लिया है। अभी here are conceptual part or understanding part of electronic configuration. इसे और भी समझाया जा सकता है और भी डीप में जाया जा सकता है, बट हमारे लिए इतना सफिशिएंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। Now electrons are filled in shell subshells in this order, इस ऑर्डर में भरे जाते हैं। और उसके लिए और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है आपको, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है। सो यू कैन से लाइक दिस, इस तरीके से ले सकते हैं हम लोग। सो दिस इज ओके। अब देखिए किसी भी एस सबसेल के अंदर मिनिमम 0 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी पी के अंदर इसमें से कोई भी पी होगा तो इसमें मैक्सिमम 6 मिनिमम 0, किसी भी डी के अंदर मैक्सिमम 10 मिनिमम 0, एफ के अंदर मिनिमम 0 मैक्सिमम 40। सो दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा नहीं। जिस तरीके से आरटीओ का रूल होता है कि टू व्हीलर के ऊपर 2 लोग अलाउड होते हैं आरटीओ के रूल के हिसाब से, उसी तरीके से किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी ये एक्चुअली ऑर्बिटल्स है नहीं, ये एक्चुअली सबशेल्स है। तो सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं, एस सबशेल के अंदर 2, पी सबशेल के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ सबशेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज द वे हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑपरेट। क्लियर विद दिस? तो अभी इसी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग चलते हैं, ठीक है? सो दैट वाज द फंडामेंटल पार्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए और एक इंपॉर्टेंट बात आती है, एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज नथिंग बट वी कैन से atomic number. Atomic number is equal to number of protons, which is equal to number of electrons, ये याद रखिएगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, कभी-कभी हम भूल जाते हैं। Atomic number must be equal to number of protons present in that atom and which is equal to number of electrons present in that atom. मतलब किसी भी एटम का अगर आपको एटॉमिक नंबर बताया जाता है तो उसका मतलब प्रोटॉन्स बताया जाता है, प्रोटॉन्स बताए जाते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स बताए जाते हैं। सो हमें प्रोटॉन्स नंबर बताया गया तो उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बताए जाएंगे तो उतने प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, लाइक दैट। सो ऑल आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड विद दैट, देन इलेक्ट्रॉन्स इज रिलेटेड विद दैट, वो दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं दैट इज पॉजिटिव चार्ज, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज नेगेटिव चार्ज। सो दैट्स व्हाई प्रोटॉन्स positive charge, electrons negative charge are balanced, and that's why atom exists as a whole as a neutral. So proton number is atomic number and whatever the proton is nothing but the number of electrons. So अब देखिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दो तरीके होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है दैट इज यू कैन से नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है बॉक्स डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो हम दोनों लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहला एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और ऐसे लिखा जाता है। सो देखिए हाइड्रोजन 1, राइट साइड में यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि दिस इज हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज 1। एटॉमिक नंबर 1 मतलब प्रोटॉन 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाएंगे? पहला शेल कौन सा होता है? 1s। एनर्जी सीक्वेंस में देखते हैं पहला शेल जो होता है 1s होता है, तो यहाँ पे आएगा 1s, यहाँ पे आएगा 1s। अभी 1s पहला शेल है और 1s का कैपेसिटी कितना है? 2 का, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पे एक ही है। सो वी कैन हैव दिस 1 इलेक्ट्रॉन हियर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम लोग।
क्लियर? सो 1s1 दैट्स ऑल। उसके बाद हमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो हम आगे जा ही नहीं सकते। हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट कैन बी रिटन एज 1s1 दैट्स ऑल। एंड इसी का बॉक्स डायग्राम होता है, इसी का बॉक्स डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सी दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1s ऑर्बिटल, दैट इज 1s, और 1s में इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं, दैट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब देखिए ये जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल इस तरीके से लिखा जाता है, दैट इज यू कैन से s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल जिसके अंदर तीन होते हैं, 1 2 3, दिस इज p ऑर्बिटल। ये होता है px, ये होता है py और ये होता है pz। सो दिस इज s सबसेल, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है। p सबसेल जिसके अंदर तीन ऑर्बिटल है, px py pz। उसके बाद d होता है 1 2 3 4 5, दिस इज d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? सी dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ऐसे होते हैं। तो ये जो d सबसेल है, d सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वाले 5 ऑर्बिटल, और f के अंदर 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, दिस इज f ऑर्बिटल। तो किसी भी f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, यू कैन से दीस आर द 7 ऑर्बिटल्स। शायद नीचे का पार्ट थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये 7 ऑर्बिटल, जैसे ये बॉक्स है वैसे इन्हें बॉक्स डायग्राम कहा जाता है। तो बॉक्स डायग्राम में s ऑर्बिटल इज शोन लाइक दिस वन, p ऑर्बिटल इज लाइक दिस वन, d ऑर्बिटल इज लाइक दिस वन और f ऑर्बिटल इज लाइक दिस वन, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन होते हैं, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन हैज द रोटेशंस। इलेक्ट्रॉन इज द पार्टिकल व्हिच व्हेन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। दिस इज सेम लाइक आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बट अर्थ व्हाइल रिवॉल्व्स अराउंड द सन इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अर्थ खुद के एक्सिस के अराउंड में भी रोटेट होता है और वो सन के अराउंड में भी रोटेट होता है, सन के अराउंड में भी रोटेट होता है। तो ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं ना, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस एट द सेम टाइम इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मतलब अर्थ खुद के एक्सिस के अराउंड में भी घूमता है, और इसके इसलिए तो डे नाइट्स होता है और एक साल भी होता है, एक साल में पूरी परिक्रमा पूरी होती है, हम अच्छी तरह जानते हैं। और 24 आवर में अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट होता है, इसलिए तो 24 आवर्स होते हैं, समझते हैं है ना? सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है दो स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक स्पिन का इलेक्ट्रॉन होता है अपवर्ड डायरेक्शन और दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, लाइक दिस वन। सो अपवर्ड डायरेक्शन हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। सो दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन हैविंग पॉजिटिव स्पिन that is clockwise, so it is shown by 1/2, and this another electron is having minus 1/2 negative spin like this, ये वाला। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, this is a pair of electron, so this is the first electron having clockwise rotation spin and this is the electron having anti-clockwise rotation spin। so in that sense you can say here किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं having opposite spins। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये एरो का मतलब ये होता है, एरो का मतलब होता है यहाँ पे एरो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो अपवर्ड है, अपवर्ड एरो दिखाता है कि वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, और डाउनवर्ड एरो दिखाता है कि वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। और जनरली दो इलेक्ट्रॉन जब पेयर में होते हैं वो जनरली वो अपोजिट स्पिन में ही स्पिन करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ही स्पिन करते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इस तरीके से देखा जाता है। तो व्हेन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बॉक्स डायग्राम में लिखते हैं इस तरीके से, अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज दिखाया जाता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर दिस वन, और ये 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हाइड्रोजन का ये नॉर्मल है और ये उसका बॉक्स डायग्राम। Okay, so normal electronic configuration. So normal electronic configuration is this, and the box diagram electronic configuration is this. So this is the way how we write the electronic configuration. Clear with this? अभी नेक्स्ट की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात आता है यहाँ पे हीलियम, हीलियम 2, हीलियम 2। उसके अंदर दो है, पहला सीक्वेंस वापस 1s आएगा, so this is 1s, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 है मतलब दो इलेक्ट्रॉन, so it will be 1s2 डन। अभी इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है तो आगे जाने की कोई सवाल नहीं। नेक्स्ट आता है, इसका बॉक्स डायग्राम क्या आएगा? इसका बॉक्स डायग्राम देखिए, दिस इज 1s ऑर्बिटल, ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, सो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम। देन उसके बाद आता है लिथियम, लिथियम 3। सो लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन है, पहला कौन है? 1s ऑर्बिटल, 1s में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बचा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल 2s, सो 2s। अभी हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो बैठ सकते हैं बट हमारे पास एक ही है ना? मतलब हम घर में जाते हैं, भूख लगी है, भूख तो दो रोटी के लिए, घर में एक ही रोटी तो एक ही खानी पड़ेगी। सो दिस इक्वेशन इज लाइक दैट। तो ये इस तरीके से समझ रहे हैं आप लोग? सो
दिस इज यू कैन से, दिस इज लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स ऑल। 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 3, 3 हो गए, 3 खत्म। उसका बॉक्स डायग्राम ये 1s, 1s, हाँ, और ये 2s है। s हमेशा बॉक्स वाला ही होता है, ओके, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। ये 2s, अभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट हैज टू बी अपवर्ड। सो दिस इज द बॉक्स डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम। गेटिंग एवरीबॉडी? सो दिस इज व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस एलिमेंट्स। लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम 4। सो दिस इज 1s2 2s2, तो यहाँ बॉक्स डायग्राम 1s and this is 2s। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। ये रहा बेरिलियम। क्लियर विद दिस? इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? Hope everyone is getting this electronic configuration very well. So take a snapshot or screenshot of this again, this electronic configuration. So I will erase this and we'll go ahead for the next example. So everyone, please. अभी ये पार्ट में erase कर देता हूँ। ओके, बेरिलियम के बाद बोरॉन 5। बोरॉन 5 has 1s2 2s2 2p1। समझ रहे हैं आप लोग? बोरॉन 5, this is the electronic configuration of boron 5। रीजन बैंड है, पहला शेल 1s है, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 जाते हैं, दूसरा 2s है, 2s में 2 जाते हैं मैक्स। अभी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 5 है तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल है, नेक्स्ट सबसेल है 2p, 2p के अंदर 1, 2p के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, बट हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमें एक ही रहेगा। जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है उतने ही भरेंगे हम लोग, बाकी वो एम्प्टी रहेगा। इसका बॉक्स डायग्राम कैसे आएगा आप देखिए, दिस इज 1s, दिस इज 2s और ये 2p, p 3 होते हैं, like this p, so this is 2px 2py 2pz। इसका मतलब ये होता है सेकेंड सेल p नाम का सबसेल x नाम का ऑर्बिटल 2px 2px। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? 2 नाम का शेल है, दिस इज नथिंग बट द सेल, p नाम का सबसेल है, ओके, p नाम का सबसेल है और x नाम का ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है। सो इसका मतलब ये होता है, so when we write 2px, तो इसका मतलब है सेकंड नंबर का शेल, p नंबर का सबसेल एंड x नंबर का ऑर्बिटल। when we have 2py, सिमिलर है 2py, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा? शेल, ये क्या होगा? सबसेल, ये क्या होगा? ऑर्बिटल। समझते हैं? तो शेल सबसेल ऑर्बिटल, तो इधर भी होगा 2pz, 2 शेल, p सबसेल, z ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ वी कैन राइट इट, वो दैट। सो ये याद रखिएगा, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ सो दैट्स व्हाई यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड, यहाँ पे 2 अपवर्ड डाउनवर्ड, यहाँ पे एक ही है, सो एक ही इसके अंदर जाएगा, एक ही इसके अंदर जाएगा। ओके, अब इसके अंदर एक बात, एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये तीनों ऑर्बिटल्स है, 2px 2py 2pz, p के सबसेल्स है, एंड दीस ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब ये होता है, these are the orbitals of p subcell, these are the orbitals of p subcell। अभी इसके अंदर किसका एनर्जी ज्यादा है और किसका एनर्जी कम है? क्या 2px का एनर्जी कम है, 2py का ज्यादा है, 2pz का ज्यादा है, किसका ज्यादा है? ये सब द सेम है, दैट वाज द क्वेश्चन। एंड Hence rule has made it clear, these are degenerate orbitals, मतलब all these orbitals are having same energy, 2px 2py 2pz is having the same energy, and that's why electrons are first filled single, each one has the single and then it starts pairing। तो जब तक ये सारे ऑर्बिटल सिंगल नहीं भरे जाते तब तक पेयरिंग नहीं होता है। अगर प्रैक्टिकली बॉन्डिंग होते समय देखेंगे हम लोग, तो 2px 2py का एनर्जी कम होता है, z का एनर्जी ज्यादा होता है। ये बाद में सामने आएगा, हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे उसके अंदर। बट नॉर्मली व्हेन वी से एज अ सिंगल एटम,
At that time, 2px, 2py, 2pz are called as degenerate orbitals. मतलब these are the orbitals having same energy. Orbitals having same energy are called as degenerate orbitals. Hope everyone got it. The concept of what is the concept of degenerate orbital? So degenerate orbitals are the orbitals having same energy. So 2px, 2py, 2pz are having same energy. Hence, when electrons are filled in them, at that time electrons are first filled single and then it starts pairing according to Hund's rule. According to Hund's rule. जिस तरीके से हम लोग किसी बस के अंदर जब जाते हैं तो पहले विंडोज एक्वायर होते हैं, देन पेयरिंग शुरू हो जाता है ना. हम पुणे से, तो पुणे लोग जब बस से ट्रैवल करते तो हम जानते हैं कि बस के अंदर जब स्टार्ट होती है बस किसी बस स्टॉप से तो पूरी बस खाली होती है, तो वी जस्ट एक्वायर द विंडोज फर्स्ट एंड देन स्टार्ट्स पेयरिंग. उसी तरीके से यहाँ पे होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा फिर पेयरिंग हुआ. जैसे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, दैट इज कार्बन 6. कार्बन 6 में क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p2 लाइक दिस. इसका बॉक्स डायग्राम क्या आएगा, अब देखिए. दिस इज 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज 2p. अभी 2p में दिस इज 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz. 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो 1 इलेक्ट्रॉन इज हियर, 1 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी हियर. अभी यहाँ पे 2px के अंदर पेयरिंग नहीं करना है because it is not according to Hund's rule. Hund's ये कहता है कि first electrons are filled single and then starts pairing. So electronic configuration इसी तरीके से आएगा, इसी तरीके से आना पड़ेगा. अभी इसे मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है. So उसके नेक्स्ट कार्बन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन 7, that is 1s2, 2s2, 2p3. तो इसके अंदर देखिए आप लोग वापस 1s, 2s, this is 2p. So 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz. So यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3, 1, 2, 3. इसके आगे जो ऑक्सीजन 8 की बात करते हैं, 1s2, 2s2, 2p4. This is the electronic configuration of oxygen. तो ऑक्सीजन का ये 1s. So देखिए, this is 1s, this is 2s, and this is 2p. So 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz. Here are the true electrons. Here again true electrons. और यहाँ पे देखिए 4 electrons है, तो 1, 2, 3, and here must be the 4. Here must be the 4. Fourth electron should pair with X. Fifth electron must pair with Y, and sixth electron must pair with Z. So this must be the electronic configuration. इस तरीके से हम लोग electronic configuration करता है. समझ रहे हैं आप लोग? तो जब भी पेयरिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन नेक्सस में चला जाएगा. So this is the electronic configuration. How we write? I think so. अभी बहुत सारा अंदाज आपको आ गया. Okay, so please have a screenshot of all this. Now मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ और I want answer from your side. ठीक है? So please have this go through it. Is there any doubt? Please let me know, everyone. If you have any doubt, please let me know. Yes, everyone. Is there any doubt to anyone regarding this electronic configuration? Now everyone must be compatible. हर एक को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना है, इजी बनेगा उसके साथ. ठीक है? ओके, अभी देखिए ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन. फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, argon 18. यहाँ तक. Everyone, please do all the electronic configuration for all these elements. So all these elements, do it in your notebook and let me know. I will call the name. Accordingly, I want oral from your side. So please, everyone.
कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एनीवन? जस्ट अनम्यूट योर. Sir, may I? यस प्लीज. कौन सा बता रहे आप? Sir, first one. फर्स्ट वन फ्लोरीन. बोलो, बताइए. Yes, sir. बोलो. 1s2, 1s2. then 2s2, हम्म. 2p5, हम्म. डन. yes sir, that's it. यस, वेरी गुड. बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 2p4 है, तो हियर इट शुड बी 2p5. 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड. सो 1s2, 2s2, 2p4. नियॉन में क्या हो सकता है फिर? Sir, +1. हाँ, मतलब 1 ऐड होगा, दैट 2p6. लास्ट Yes, इलेक्ट्रॉन 2p6. वेरी गुड. Is there any other person who can tell me the electronic configuration of aluminium? I want for aluminium. Aluminium 13. Sir, may I? Yes, please. Sir, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. 3p1. Okay, so this is the electronic configuration. See, Atha has stated. So once again, Atha, repeat it. 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p, 3s2, 3p1. वेरी गुड, वेरी गुड. आप देखिए, आप कोई भी आप में से जब टैली करना चाहता है कि इधर हमने जो लिखा है राइट है या रॉन्ग है, देखिए सबसे पहला सीक्वेंस देखिएगा. ऑर्बिटल के सीक्वेंस के लिए वो डायग्राम कहीं भी बना लीजिएगा आप लोग. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ऐसा सीक्वेंस है अपना. तो सीक्वेंस राइट है. उसके बाद इलेक्ट्रॉन टैली कीजिए. s has 2, s has 2, p has 6. तो 2 plus 2 4, 4 plus 6 is 10, 10 plus 2 12, 12 plus 1 is 30. Aluminum has 13 atomic number, means it has 13 electrons, and that's why this electronic configuration is right. So हम लोग बॉक्स में भी निकाल सकते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को. वही होगा 1s, 2s, 2p, 3s and 3p, जो हमने ऐसा लिखा था. इसी बॉक्स डायग्राम इसका भी आ सकता है. क्लियर? ओके. Is there anyone who will tell me the electronic configuration of chlorine? Yes, please. There are many students who have logged in, but need to unmute. मोहन छोड़ दीजिए. Yes, Kashish, बोलो. Sir, may 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 3p5. Very good. This is the electronic configuration of chlorine. Chlorine belongs to halogen family, and every halogen family has 3p5. So that is what we can say. So this is electronic configuration of chlorine. Now argon का तो इसके साथ ही होगा 3p6. That can be electronic configuration of argon. Back rest people, please do it, because this electronic configuration is must for many of the things. Many of the chapter becomes easy with this electronic configuration. So once again, I appeal you, if is there any difficulty, please be open and let me know. If you don't open up, you will be in a trouble again, because you are hiding the knowledge, and that's why it will create a trouble for understanding the topics. Okay. Argon के बाद क्या आता है? Potassium 19, calcium 20, scandium 21, vanadium 22, titanium 23. Sorry, scandium, titanium, vanadium, chromium 24, Mn 25, iron 26, cobalt 27, nickel 28, copper 29, and zinc 30. This is the electronic configuration for next row. Okay. Is there anyone other than the students who spoke now will tell me the scandium 21? This is the electronic configuration for scandium 21. अभी आदित्य ने बात की थी, कशिश ने बात की थी, पायल ने बात की थी. Is there any other person? Any other student? Please come on.
आदित्य सालुंके. Yes, please, Aditya Salunke. Sir, may I? हाँ बोलिए प्लीज खुशी. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 4s2, 3d1. 3d1. Very good, very good. So very good, Kushi. So this is the electronic configuration. Now, the most of amongst you is getting it well, got it well. Rest people, please let me know either you got it or not. See, many of the students are getting, and it's a very good thing. I got the response from the students. कि इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि चैप्टर इजीली समझेगा कोई भी चैप्टर, और ये फंडामेंटल होने के कारण किसी भी चैप्टर पे यूजफुल है. So this is the electronic configuration. Is there anyone who can tell me the electronic configuration of chromium? Anyone amongst you? You can repeat even. Sir, may I? Yes, आता हूँ पहले. हाँ. Sir, it is same till argon. Then we have to just add over 4s2 and 3d4. चलो repeat करो, चलो बोलो. 1s2, हाँ. 2s2, हाँ. 2p6, हाँ. 3s2, Yes. 3p6, Hmm. 4s2, Hmm. 3d4. 3d4. Clear? Is there any other person having different opinion than this? Yeah, it's a right. Yes. Is there any different opinion regarding this electronic configuration? Yeah, otherwise stated right one. There is a bit googly. Theoretically, what the electronic configuration we have discussed till that, this is right. मतलब अभी जो अथर्व ने बताया, yes, I got the response from Aditya Aire, and this is 3d5. मतलब here you just consider this last one, that is 4s1 and 3d5. This is the practically observed last electronic configuration, and this is the theoretically which is expected. This is the difference of the electronic configuration, because what we have seen according to rules till that, so this electronic configuration theoretically is right. But when it is practically observed, we won't get this electronic configuration, we got this electronic configuration. मतलब ये last का है, बाकी पहले वाला same है, मतलब ये इस तरीके से जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 and 3d10. तो ये गुगली क्यों आता है, ये इसके अंदर चेंज क्यों आता है, ये पार्ट हमें देखना है. कल के लेक्चर में डिस्कस करके विल स्टार्ट विद द पीरियोडिक टेबल. बस अभी लास्ट के दो एलिमेंट्स बचे हैं, क्रिपॉन एंड कॉपर, जिनके बारे में ये प्रॉब्लम आता है, जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. मतलब 30 तक ऐसे कुछ एलिमेंट जरूर है जिनके अंदर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है. So chromium and zinc, copper are the exceptional element who has a different electronic configuration. What the reason behind this exceptional electronic configuration? We'll discuss in tomorrow's lecture. Till then, bye-bye. Thank you very much. See you tomorrow. Tomorrow morning for the revision of other chapter, and then in the evening with the same chapter. Thank you very much.